So good evening and welcome. Welcome to Ancestral Healing special session today, where we are going to discuss the intricacies of ancestral healing. What are the kind of prayers or practices one should do for our ancestors to get healed and also for us to get their blessings so that we can move forward on our spiritual journey with divine blessings. Right? So I welcome all of you and those who have come here for the first time. Please feel comfortable to share whenever you have any question or anything you have to share. Yes. So ancestral healing, we have all heard about it, Pitru Paksh, and this is very special time when we do prayers and to our ancestors, or rather we pray to divine so that our ancestors are moving on their spiritual journey and attaining to moksha. Also, we are asking for the blessings from our ancestors so that we are moving forward in our life, whatever we are facing life situations. So we move through them with a lot of ease, joy, and enjoy all the benefits of perfect health, perfect wealth, perfect relationships. And that is possible when we have the blessings of these ancestors, right? Now, why this period is so particularly useful for the ancestral healing is you need to understand when we are born in a lineage, we are carrying you can say the genetic code of our ancestors. Yes, our genes are having the code of the ancestors. So there is a genetic karma that we are carrying with us, right? So this time is very powerful for us to heal our genetic codes or the genetic karma which we are getting in this lineage just by the grace of being born in this family. We are inheriting these karmas. So one is very strong set of karmas that we have, or very strong set of sanskars that we have, is the genetic karma, and that gets healed very powerfully in this spirit, which is starting from, which is called the Mahalaya, which starts with the Purnima of, like in this year, it started with the Purnima on 29th of September and 14th October, which is the Amavasya. That is when the Mahalaya ends. And after 14th October, we do the Navratri Pujas, and that culminates on Dashera, which is 24th October. And the final culmination comes on the full moon day of the 28th of October. So that is how we will be doing the process. So the healing doesn't stop tomorrow. This particular process of ancestral healing, where we are asking for the blessings, this will be completed tomorrow. And then we move on with the Navaratris, where we manifest the desirable results in our life. So whatever you want to manifest for that, you will be having special blessings and special energies in the universe, which will help you to manifest all the desires in your life. So that is why this is very powerful. नवरात्रि की जो हम पूजा करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमारी लाइफ में, और काफी लोग जो बीज डाल के उगाते हैं, राइट, एंड वी हैव बिग बिग खेती हमारे घर में सब लोग करते हैं, और फिर उसकी जो जो क्या बोलते हैं उसे, जो भी है उससे हम फिर पूजा करते हैं, एंड देन दैट ऑन दशहरा डे वी डू द पूजा. यस, सो आई डोंट नो द टेक्निकल वर्ड्स फॉर दैट, बट दैट इज व्हाट वी ऑल डू. एवरीबॉडी नोज दिस प्रोसेस. तो नवरात्रों की पूजा जो होती है वो इसके बाद आती है. सो दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए क्लींजिंग पीरियड. इसमें हम अपनी नेगेटिविटीज को पूरी तरह से साफ करते हैं. तो लोगों को माफ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लोगों को माफ कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स को हम माफ कर रहे हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं अपने कर्मों के लिए. अगर हमसे कोई गलत कर्म हुए हैं तो हम उनसे माफी मांग रहे हैं, और उनके अगर गलत कर्म हुए हैं तो उनके एंसेस्टर्स से उनको माफी दिला रहे हैं. So this is a whole chain of lineage which is getting purified, right? So once the negativities are over, like there are many cases when we hear family curse, family में curse चल रहा है, right? तो पूरे पूरे lineage को कोई श्राप मिला हुआ है, वहां पे कोई भी शादी के बाद खुश नहीं रहता है, या किसी की शादियां होती ही नहीं है, या कईयों पे बहुत बहुत सुसाइड्स हुए हैं. तो वो आत्मा भटक रही है, और हम सुनते हैं कि उनको, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल रहा है या उनको लिबरेशन नहीं मिल रही है, तो वो परेशान है, एंड दे आर नॉट गेटिंग द नेक्स्ट बर्थ. सो all these problems are very strongly healed during this
दिस यूनिवर्सल टाइम ऑफ जेनेटिक हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, पितृपक्ष जो हम बोलते हैं। तो पितरों को याद करके उनके लिए हम पूजा करते हैं। तो फर्स्ट एस्पेक्ट है इस पीरियड का, वो ये होता है कि हम अपने पितरों को याद करते हैं, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स को याद करते हैं। तो मैंने एक एफर्मेशन दी हुई है, उस एफर्मेशन सबने देखा होगा वो एफर्मेशन ग्रुप में, यस। अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज, जितने भी आपके एंसेस्टर्स आपको नाम से याद है उनकी एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स करके लिस्ट बनाइए, अपने मदर्स साइड और अपने फादर साइड से जितने लोग याद हैं, जिनके नाम याद हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। उन सबको याद करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए, दैट मीन्स यू आर आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम देम, राइट, एंड यू आर आस्किंग देयर ब्लेसिंग्स। उसके बाद उनको याद करते हुए वी विल बी डूइंग दिस एफर्मेशन। हीलिंग मैं कर रहा हूँ, so you don't have to worry about the healing part, but you remember those ancestors and then hello, anyone wants to share? Just raise your hand if you want to share something, huh? Then I will stop and give you a chance to ask. Yeah, so this is the first part of the healing, which where we are asking divine to move our ancestors into a zone where they are moving forward in their spiritual journey. अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जो एंसेस्टर्स हमारे गुजर गए हैं उनके बारे में हमको नहीं मालूम, वो एक और जन्म लेके अगले बॉडी में आ चुके हैं, तो उनकी हीलिंग कैसे होगी या हम कैसे कर सकते हैं? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन सोल टेक्स ए फॉर्म, यानी कि लाइफ फॉर्म, राइट, सोल इटर्नल है, सोल कैन डेफिनेटली टेक ए लाइफ फॉर्म। तो एक लाइफ फॉर्म खत्म हुआ, दूसरे लाइफ फॉर्म में चले गए, ऑफ कोर्स फॉर देयर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए दूसरा जन्म लेते हैं। अब हमको नहीं मालूम वो एंसेस्टर्स कहाँ पे हैं, राइट। तो इस पीरियड में हम ये बोलते हैं कि बेशक फॉर्म चेंज हो गया हो, एनर्जी विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। और उनके जीन्स जो हैं, उनकी जो ट्रॉमा है, अगर मान लो किसी ने सुसाइड किया, मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा धोखा हुआ या बहुत बड़ा इमोशनल ब्लॉक है उनके पास, वो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में, बिल्कुल होगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में बिल्कुल होगा। तो मान लीजिए बहुत बड़ा एक कोई ट्रेजेडी हो गई है, उसके इमोशनल इम्पैक्ट पूरे लीनिएज में आएगा और वो आपके जीन्स में आएगा, आप उसे इनहेरिट करेंगे ही करेंगे। तो बेशक एंसेस्टर्स नहीं हो, उनका ट्रॉमा, उनकी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, और ये बोलते हैं हम 7 जनरेशंस तक ये इम्पैक्ट रहता है। अब इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन 7 जनरेशंस तक ही क्यों बोलते हैं? हम बोलते हैं 7 पुश्तों तक, फेरों में भी 7 फेरे। 7 बड़ा ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है, क्योंकि 7 जन्मों का जो क्रम है, इसको एक लिंक मानते हैं। So your ancestors of 7 generations can be impacted with this healing. Your further generation, 7 पुश्ते, जो आने वाले 7 पुश्ते हैं आपकी, यानी कि आगे जनरेशन आएगी, उनको भी इम्पैक्ट मिलता है when you get healed. So you will be transferring the positive energy that you are getting now to 7 generations down the line. Get my point? So it is always considered as a 7 generations. Now you look at it this way. एक सोल है, इस जन्म में आप यहाँ पे हैं, इस लीनिएज में आए हैं, अगले जन्म में किसी और लीनिएज में जाएंगे, उसके बाद किसी और लीनिएज में जाएंगे। हाँ, तो मान लेते हैं 7, हम 7 का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। 7 लीनिएज में आपने जन्म लिया, ओके। अब बोला ये जाता है 8वां जन्म जो है आप इसी में, यानी कि जो फर्स्ट वाला है उसमें ही रीबॉर्न होते हैं। सो यू आर एक्चुअली गेटिंग बॉर्न। अगर आपने अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को नहीं देखा है, पॉसिबली you were the one who are getting reborn in that line. How many of you can digest this? कि 7 जन्म के बाद 8वां जन्म आप ही अपने लीनिएज में वापस आ रहे हैं। तो ये जो एंसेस्ट्रल जीन्स का जो बर्डन है, या फिर जो भी उसमें जो नेगेटिविटी है, वो लगातार आपके उसमें आता है, ट्रांसफॉर्म होता है, आपको अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका मिलता है। जो आपने 7 जन्म पहले कुछ पाप किए थे, वो आपके जीन्स में हैं, आप खुद ही अवतार नहीं, दूसरा जन्म लेके आप उसी लीनिएज में दोबारा आ रहे हैं।
आप कहाँ जाएंगे बताइए, हर बार नए लीनिएज में जाएंगे, रिपीट करेंगे ना। तो नॉर्मली बोलते हैं 7 जनरेशन के बाद आप रिपीट करते हैं। दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग, नो साइंटिफिक प्रूफ, ओके। तो दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए 7 जन्म को इतना महत्व देते हैं, राइट। उसके बाद आपने फिर 7 के बाद 8th में फिर आ गए, यहाँ पे 9th में जो सेकंड वाला था उसमें चले जाएंगे। अब ऐसा कोई सीरियल नहीं है, किसी में भी जा सकते हो आप, हाँ, जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ यू नो वो एंसेस्टर जो दूसरा फॉर्म ले चुके हैं वो कौन है, हो सकता है आप ही हो। इसलिए आपकी हीलिंग करने से फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, वो एनर्जी वहां से रिलीज हो जाएगी, राइट। और अगले भी अगर आप जन्म में कहीं जा रहे हैं, एनर्जी तो वही है, एनर्जी के कार्मिक इम्प्रिंट्स तो वही रहेंगे आपके। अगर 100 जन्म आपने लिए हुए हैं, इफ यू हैव टेकन 100 बर्थ्स, all the imprints of these 100 human births are imprinted in your chit. You are carrying that imprints. Good, bad and ugly sanskars are there with you. So now you know the the volume of the chit that you have and the kind of imprints that you have. It's like water drops in the Pacific Ocean. आपको वो हील करने को बोला जा रहा है। तो कई मेरे फ्रेंड्स अक्सर पूछते हैं, पिछले साल तो किया था मैंने एंसेस्ट्रल हीलिंग, इस बार करने की क्या जरूरत है। अगर आपको पैसिफिक ओशन को साफ करना हो तो एक बारी कर देने से हो जाएगा, नहीं। आपके चित्त में इतने लाइफ टाइम्स के नेगेटिविटीज भरे हैं, संस्कार भरे हैं, उसको साफ करने के लिए व्हेन ये परफेक्ट टाइम है, यू शुड गेट on doing these pujas and your healings regularly during this time so that you are free from the chit. Making sense? तो अपनी हीलिंग करने से और लीनिएज को 7 जनरेशंस को हील करने से यू आर टेकिंग ए ब्रंट ऑफ लॉट ऑफ नेगेटिव कर्मास फॉर योर होल लीनिएज। आप पूरे लीनिएज को कर रहे हैं साफ, आने वाले और जो पहले चले गए। और आपको मालूम बहुत कुछ होता है लीनिएज में, राइट। कभी सुसाइड होता है, कभी मर्डर होता है, कभी प्रॉपर्टी छीनी जाती है, कभी पूरे फैमिली को ही साफ कर दिया जाता है, बहुत कुछ होता है। और ऐसे बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे या एटलीस्ट यू कैन इमेजिन, राइट। So that is the importance of ancestral healing, of giving moksha to our ancestors. उनकी spiritual journey में आगे मूवमेंट हो जाए, चाहे वो इस जन्म में ले चुके हों, चाहे वो आपके कजिन बन के ही आए हों, but they are your ancestors only of some lineage of some time. That is what you need to know. अभी तो ये एक ही जन्म की बात कर रहे हैं, इसी जन्म में इतने लीनिएज, कितने जन्म लिए और कितने लीनिएजेस हैं आपके पास। 7 तो मैंने एक बताया था, सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 7 होते हैं। अब आप सोच लीजिए, अगर आपने 100 जन्म लिए, कितने मल्टीपल्स ऑफ 7 चल रहे हैं, कितने लीनिएजेस के कर्मास आपके पास चल रहे हैं। तो इट इज ह्यूज। यस, so before I go ahead, I will ask someone to, if you have any questions, please feel free to ask. So that is the importance of ancestral healing, which I wanted to first share with you. Any questions? Please raise your hand. So Maniji, you had a question mark on your face when we started. Did you get an answer? आपको जवाब मिला कुछ? नहीं सर, अभी भी क्लियर नहीं हुआ उस चीज क्या का। सवाल है, दोबारा से रिफ्रेश करिए सबके फायदे के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका कॉस्ट्यूम नया मिलता है, और वो कहीं ना कहीं अभी कहीं और किसी कॉस्ट्यूम में होंगे, मतलब कहीं और होंगे, तो ऐसा क्या होता है कि पितृ पक्ष में हम उनकी हीलिंग, मतलब थ्रू एनी हाउ उनकी हीलिंग कर सकते हैं और वो हमारे पास आते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तो कहीं और एंगेज्ड होंगे, जो ऑलरेडी कहीं और एंगेज्ड है, तो वो कैसे आ सकता है दोबारा से सोल बन के इन दिनों में? या तो ये वापस आते हैं आपके पास, ये एक बिलीफ है, ये इसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये एक बिलीफ है। यानी कि एक सोशल कस्टम बन गया है, ये मानते हैं कि भाई हम उनकी ओके, पूजा कर रहे हैं तो वो आएंगे नहीं, लेकिन वो एनर्जी जो हम रिलीज कर रहे हैं, जैसे उनको अगर राइट, माफी दिला रहे हैं, इफ यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, वी आर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर देम, वी आर आस्किंग कि भगवान जी इनको, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ जाए, तो उनकी इस प्रेजेंट लाइफ में वो जहाँ पे भी होंगे उस लाइफ में उनको बहुत आराम मिलेगा, चाहे वो गर्भ में हो या वो दूसरे लाइफ में हो, और वो वहां पे बहुत परेशानी में हो, उनकी वो परेशानी दूर होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गांठें थी, जो प्रॉब्लम थी, वो हमने रिलीज कर दी। तो वो एनर्जी जो उनके पास आई, क्योंकि उनकी एनर्जी वो लेके चल रहे हैं साथ में,
करेक्ट। सोर्स को हमने अगर हील कर दिया तो उस सोर्स से एनर्जी उनके पास भी तो बह रही होगी ना, उनके पास्ट लाइफ का कर्मा है ये। एक तो जेनेटिक कर्मा है, एक पास्ट लाइफ का कर्मा भी तो आता है ना, तो उनके पास्ट लाइफ के कर्मास में ये उनके चित्त में होगा। जैसे आप इसको हील करेंगे उनका चित्त वहां से साफ हो जाएगा। ये स्पिरिचुअली पॉसिबल है। वो वापस आएंगे ये एक बिलीफ है, कहानी नहीं बोलूंगा पर एक बिलीफ है, वो जरूरी नहीं है कि वो, पर आपकी एनर्जी वहां पहुंच जाएगी। आप जो हीलिंग कर रहे हैं उसका फायदा उनको मिल जाएगा, वो जिस मर्जी फॉर्म में, या फॉर्म ना भी लिया हो। अब ये भी होता है, जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली फॉर्म मिल जाए, कई बार वेटिंग लिस्ट में होते हैं। हाँ, जैसे होता है ना, एक ट्रेन छोड़ दी तो दूसरी ट्रेन के लिए आप वेटिंग रूम में वेट करते हैं, दूसरी गाड़ी आएगी तब ट्रेन में चढ़ेंगे, तो एक दिन 2 दिन आप वेट कर रहे हैं कनेक्शन ट्रेन के लिए, कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए करते हैं। तो एक बॉडी अगर छूट गई और सही प्लानिंग के साथ नहीं किया, दैट मीन्स आपने अपनी मर्जी अगर उसमें डाल दी, जैसे कोई सुसाइड कर लेता है, तो वो डेस्टिन्ड नहीं था उस समय। हो सकता है वेटिंग रूम में वेट करना पड़े और अगले लाइफ फॉर्म के लिए शायद 100 साल, 150 साल, 500 साल, 1000 साल वेट करना पड़े उसे। गेट मी पॉइंट। तो वो जो वेटिंग पीरियड है उसमें उनको सही डायरेक्शन मिल जाएगी। वो नई फॉर्म ले पा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको आत्मा शरीर नहीं मिल रहा है, वट एवर रीजन। आत्मा को अगर शरीर नहीं मिल रहा है मतलब बहुत गंदे कर्म हुए हैं कुछ, टोटली आउट ऑफ प्लानिंग गए हैं वो। गेट मी पॉइंट। अब जैसे एक ट्रेन से अगर आप जंक्शन में उतरते हैं तो आपको कनेक्शन ट्रेन मिल जाएगी, आप बीच में ट्रेन से कूद जाते हैं या गिर जाते हैं, चोट तो अलग लगेगी, आपको एक स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा ना अगली ट्रेन लेने के लिए। I'm just giving you some examples so that you can connect, right? तो सही तरीके से अपनी लाइफ को जीना, डिवाइन का ग्रेटिट्यूड में रहना और अपने कर्मों को सही करना, ये एश्योर करता है कि आपका अगला जन्म जो है सही तरीके से आएगा। यानी कि कनेक्शन ट्रेन सही मिलेगी, अगली बॉडी सही तरीके से मिलेगी, और आप अपने कर्मों पे अगर ध्यान देंगे और अगर कोई निषिद्ध कर्म मीन्स प्रोहिबिटेड कर्म जो है वो नहीं करेंगे, तो आपका अगला जन्म जो होगा काफी सुखद होगा, अच्छी जगह पे होगा और आपसे बेटर होगा। यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है। अब आंसर मिला मनी जी। ओके, वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज मनी जी। उनका सवाल था अगर सर ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क, सो ये तो कभी भी कर सकते हैं ना, थ्रू आउट द ईयर एनी टाइम, बिकॉज एज यू सेड कि सोल हमारे किसी भी कनेक्शन में हो सकती है, एज एनी रिलेशनशिप, राइट? सो वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, बट दीज डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबली यस, बिकॉज ऑफ क्योंकि कुछ। हीलिंग आप नहीं कर रहे हैं, हीलिंग डिवाइन कर रहे हैं। तो जब डिवाइन की एनर्जीज पावरफुल होती हैं उसी टाइम पे किया जाता है। नवरात्रों की पूजा इसी टाइम पे क्यों होती है? दिस आर द डेज ऑफ द देवी, देवी के डेज है, ये बहुत पावरफुल हैं। इसमें आप छोटा सा भी कर्म करेंगे, पूजा करेंगे, बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। पूरे साल में आप लगे रहिए, 10-10 घंटे पूजा करते रहिए, वो असर नहीं आएगा। इसमें 1 मिनट की पूजा में वो असर आता है, क्यों? एनर्जी है, एनर्जी है। करेक्ट। अगर बहुत ठंडी हवा चल रही है, खिड़की खोल देने से हवा आ जाएगी ना। लू चल रही है, खिड़की खोल देने से ठंडी हवा नहीं आएगी, क्यों? उस समय की यूनिवर्सल एनर्जी गर्म हवा की है, ठंडी हवा की है ही नहीं। गेट माय पॉइंट। सो इसीलिए स्पेसिफिक टाइम्स में हम जो पूजा करते हैं दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ महालया, दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ टुमारो। टुमारो इज द कल्मिनेशन ऑफ अमावस्या, अमावस्या में महालय का कल्मिनेशन मानते हैं। तो कल क्या क्या करना है, ठीक है, उसमें मैं आता हूँ, पर पहले मैं थोड़े से ये लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूं। तो सबको क्लियर हो गया एंसेस्ट्रल हीलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी लीनिएज में आप कौन से जन्म लेके वापस अपनी लीनिएज में आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी नोज। सो इट इज बेटर, और किस लीनिएज में जाएंगे ये भी नहीं मालूम है। करेक्ट। और जब आप ये हीलिंग करते हैं तो आप अपने हर जन्म के हर लीनिएज को हील करने की पावर रखते हैं इस टाइम पे। इसीलिए हर साल ये पूजा या ये हीलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट मानी जाती। ओके, तो एंसेस्टर्स को स्पिरिचुअल जर्नी मिल गई, उनसे हमने माफी मांगी, ब्लेसिंग्स लिए, हमारी लाइफ आगे बढ़ गई, और हमारे आगे के 7 जनरेशन के लिए पावरफुल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया हमने, उनको इतनी स्ट्रगल नहीं होगी। यस, एंड ऑफ कोर्स कई बार आपने सुना होगा काफी बीमारियां ऐसी होती है जिनके अभी साइंस ने इलाज नहीं ढूंढा है, इसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी 3 जनरेशन ऊपर एक ऐसा केस आया था, उसके बाद आज की जनरेशन में दोबारा आ रहा है।
जेनेटिक डिसऑर्डर, उसका कोई इलाज ही नहीं है, करेक्ट। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, जैसे टोटल डिजेनरेशन ऑफ द मसल्स होता है, उसका इलाज ही नहीं है, द पेशेंट डाइज। इसमें कुछ नहीं कर सकते, और वो रिपीट होता है आफ्टर 3-4 जनरेशंस। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये वाली हीलिंग से जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बहुत फर्क पड़ता है। जो बीमारियां हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, वो बहुत हील होती है, क्योंकि आपके जीन्स हील हो रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ दिस हीलिंग। यस, okay, let's have somebody else to ask this question. And thank you Maniji for asking some tough questions, but I hope it was valuable for everybody. Yes. Thank you, sir. Yes, Gunjan ji, go ahead. सर, तो हमें हर साल करवानी पड़ती है ये एंसेस्ट्रल पड़ेगी मत बोलिए, करनी चाहिए, बिकॉज करनी चाहिए। ओके आप रोज नहाते हैं, शरीर का ख्याल रखते जी। हैं ना, रोज ब्रश करते हैं, जी राइट। दिवाली में हर बार घर साफ करते हैं, या तो मन के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। मन मतलब चित्त, और चित्त मतलब क्या, मैंने अभी बताया ना, पैसिफिक ओशन के पानी को साफ करने के बराबर है। वो भी बहुत छोटा पड़ेगा, पैसिफिक ओशन बहुत छोटा पड़ेगा, सारे महासागरों को मिला लो, उसको साफ करने का जिम्मा अगर आपको चाहिए तो कितने दिन में करोगे, कितने जन्म में करोगे। दैट इज द काइंड ऑफ, मैं इसीलिए जन्म पे जन्म हम लिए जा रहे हैं अपने कर्मों को धोने के लिए। और ये ऐसा टाइम है जिसमें बड़ी आसानी से आप अपने कर्मों को आसानी से धो सकते हैं। एटलीस्ट अपनी लीनियज को तो साफ करें हर साल, हर साल। और ये मेरे को भी नहीं मालूम था, जब मैंने शुरू किया ये, मतलब अराउंड 5 years बिफोर आई गॉट दिस इंट्यूशन कि ये बहुत पावरफुल हीलिंग है, करनी चाहिए और करानी चाहिए। तो फर्स्ट 2 years आई वाज ट्राइंग टू गेट इट डन फ्रॉम कहाँ से करूँ काइंड ऑफ अ थिंग। Then I got the, whatever with divine blessings, I got the intuition कि yes, I can do this for others. And then that is when I started this. And touch wood, with divine blessings, everybody is getting a lot of benefits. बहुत लोगों को genetic disorder से फायदा हुआ है, बहुत लोगों को लाइफ में बड़ी मूवमेंट मिली है इस हीलिंग से। तो ये 1 महीने की हीलिंग मैं हमेशा करता हूँ, एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक। तो दिस टाइम इट इज 29 September to 28 October. वेरी वेरी पावरफुल, यू विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, आई टेल यू दैट, अगर आप सीरियसली इसको बिलीव करें और फॉलो करें। जो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं, हीलिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को छोटे छोटे प्रैक्टिसेस मैंने दिए हैं, तो आप उस पर आ जाएं। अगर हीलिंग के टेक्निकलिटीज क्लियर हैं तो हम प्रैक्टिसेस पे आते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, सो लेट्स एक्नॉलेज गुंजन जी एंड मनी जी फॉर वेरी गुड क्वेश्चन। यस, गुड। एनी अदर क्वेश्चन? Shashi, I just यस, yeah. यस Silveri. Because I am not very familiar with the practices of all this, so this is all very new for us, I think. Yeah, Um, that's fine. But I always thought that when a person passes away, the soul goes immediately. The moment a person passes away, a soul goes into another being, or जो कहीं और जन्म लेते हैं. That is Ideally, what that is an ideal situation. Like a Okay. connecting flight, or हाँ, a connection train. but- हाँ, प्लानिंग but अच्छी है today- तो मिल जाएगा। Uh-huh. But today, like when you're explaining, I'm hearing that there is a possibility कि ऐसा नहीं भी हो सकता है. It can be not getting another body to come Yes. into a soul, Yes. right? Yes, And it is acha. possible, very much possible that you have a waiting period. And It's these very much souls for possible. I mean, what happens to the souls and where are they at that time? Yeah. Is I'll tell little you that. confused. One short Yeah. answer is they are in a waiting room. But कौन से waiting room में है, मैं भी जवाब देता हूँ। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसको सुनने के लिए? थोड़ा सा टेक्निकल होगा और आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, जो गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ, राइट? But before that, let me just check and welcome some of the guests who have joined in a bit late. So Shobna ji, welcome. And I hope if you have any question, you should ask. And Oppo A16e, ये कौन है? जरा अपना नाम बताइए. I need to know whether you are in the Heelys group or not. हाँ, कोई गेट क्रैश करके तो नहीं आए हैं? Oppo A16 कौन है? Just tell me your name. Okay, so whenever he or she is ready for that, we will know. हाँ, कौन है? Oh, Manish, welcome. भाई नाम लिख लिया करो ना,
पता नहीं चलता है, मेरे को लगता है कोई गेट क्रैश करके आया है। हाँ, तो मैं रिमूव कर देता अभी। ओके, लाइटर वेट, ओके, वेलकम। यस, तो हम बात कर रहे हैं कि यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ये सिल्विया जी, कि वेटिंग पीरियड कैसा होता है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान, देयर इज ऑलवेज नेवर ए डिले इन द फ्लाइट, नो कनेक्ट, नो प्रॉब्लम इन द ट्रेन, एक छुड़ी दूसरी को पकड़ ली। हाँ, बड़ा आसानी से हो जाता है, प्लानिंग के साथ चल रहे हैं ना हम लोग, टिकट्स भी है, रिजर्वेशन है, कंफर्म्ड है, सब कुछ है। विच मीन्स व्हाट, इफ यू आर लिविंग योर लाइफ परफेक्टली and you are moving higher in the evolution, evolution means what, आपके कर्मास gradually improve होते जा रहे हैं। now you need to know human life is a big blessing, yes or no, human life जो हमको मिला है, this is a big blessing, it has come to us with a lot of hard work। अब यहाँ पे आके फिर हम अगर जानवरों वाली हरकतें करेंगे, which we know कलयुग में हो रहा है आजकल, हाँ, लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, रेप, मर्डर, एसिड अटैक, ये वो, हाथ काट दिया, पाँव काट दिया, धक्का दे दिया, मार दिया, ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जानवरों जैसे हरकतें कर रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो एक ह्यूमन लाइफ मिला, आपने अपने कर्मों को बहुत गिरा दिया, टोटली तामसिक, टोटली वायलेंट, टोटली अनप्रोहिबिटेड जो एक्ट्स है वो सब करने लग गए। तो अगला जन्म आपका इससे इससे बदतर होगा या बढ़िया होगा? मुश्किल होगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे अभी एसी 2 टायर पे चल रहे थे, तो वहां पे आपको सेकंड क्लास में मिलेगा। अब यहाँ बैठ के जा रहे थे, अब खड़े होके जाओगे, ठीक है। किसी के हाथ पांव आपने काट दिए हैं, तो अगले जन्म में शायद आपके हाथ पांव नहीं होंगे। भाई यूनिवर्स में कुछ गलत नहीं होता है, यूनिवर्स में सब चीजें बिल्कुल बराबर से होती हैं, एज पर योर कॉज एंड इफेक्ट से चलता है। जो आपने कर्म किए, दे बिकम द कॉज एंड योर नेक्स्ट बर्थ इज ए इफेक्ट ऑफ दैट, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अगर हमारे कर्म सही हैं, हमने लाइफ अच्छी जिए है, कर्म मेरे अच्छे हैं, लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अवेकेंड हैं और लोगों को कंट्रीब्यूट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अगला जन्म इससे बेटर होगा। तो सबसे पहले जो गरुड़ पुराण में बताया गया है, आपके कर्मों के हिसाब से, और भगवत गीता में भी बताया गया है, आपके कर्मों के हिसाब से आपका अगला जन्म फिक्स्ड होता है। जिस कॉन्शियसनेस में आपने शरीर छोड़ा, उसी कॉन्शियसनेस से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे अगले जन्म में, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, भूलोक में जो हमारा कॉन्शियसनेस है, इट स्टार्ट्स विथ रूट चक्र कॉन्शियसनेस। इफ एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ मूलाधार, रूट चक्र, ये हमारा अर्थ का कॉन्शियसनेस है। अब यहाँ पे हमने आ गए हैं, ह्यूमन लाइफ ले लिया है, रूट चक्र से हम इंप्रूव करना शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं भू, ओम भू। उसके बाद जो 6 लेवल्स हैं वो इसके ऊपर माने गए हैं। तो आई जस्ट टेल यू, इफ यू कैन कनेक्ट विथ इट फाइन। ओम भू इज द रूट चक्र फॉर द अर्थ। अर्थ के ऊपर के जो लेयर्स हैं, ये पॉजिटिव कॉन्शियसनेस से ऊपर जा रहे हैं। ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। ओम सत्यम इज कंसिडर्ड टू बी वैकुंठ, विष्णु धाम, ठीक है। तो ये तो हो गया हायर लेवल्स। लोअर लेवल्स में कहाँ जाएंगे? आई विल नॉट नेम द ऑल द 7 बिलो, टोटल 14 है। अर्थ को मिला के ऊपर 7 हो गए, और अर्थ के नीचे तल, महातल, तलातल, लास्ट में पाताल। तो ये कौन से कॉन्शियसनेस हैं? ये सटल बॉडी है, कॉन्शियसनेस लेवल्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जन्म आपका यहीं पे होगा, लेकिन बढ़िया यूनिवर्सिटी में चाहिए तो कर्म अच्छे करो, अच्छे मार्क्स लाओ, मेरिट लिस्ट में आओ। हाँ, 40% मार्क्स लेके जा रहे हो तो कौन से कॉलेज में जाओगे? कंपार्टमेंट में जाओगे, करस्पॉन्डेंस करोगे, बाहर रहोगे, नीचे जाओगे ना आप। तो ये वो वाले लेवल्स हैं। अब यहाँ पे हो सकता है आपको एडमिशन ही ना मिले, आपने इतने गंदे कर्म किए हैं, आपको कहीं एडमिशन ही नहीं मिल रहा, ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिल रहे। So now you will have to go through a lot of hard work to get those great marks to get a birth. Am I making sense? Yeah. So consider it that way. This is only an example. Actual में क्या होता है कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के बहुत परे है। बट अंडरस्टैंड इट दिस वे। तो इस जन्म में आपने देखा होगा लोग बहुत बुरा कर रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में काफी अच्छे कर्म किए थे, इसलिए यहाँ पे अच्छे एंजॉय कर रहे हैं। कोई अंबानी के घर पैदा हुआ है, हाँ, कोई अमिताभ बच्चन के घर पैदा हुए, कोई मन्नत में है, कोई जन्नत में है। हाँ, तो ये सब क्या है? कर्म अच्छे किए हैं इसलिए वहां पैदा हुए हैं। पर अब आप अगर कर्म क्या करेंगे, ड्रग्स ले रहे हैं और अगर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अगला जन्म कहाँ जाएंगे?
हो सकता है हाथ और पाँव ही ना हो, होंगे इंसान ही, होंगे इंसान, लेकिन इंसान की कैटेगरी कभी जानवरों से भी बदतर होती है कि नहीं? So this is what is mentioned in Garud Puran, that you will move to a consciousness and you will get the next birth according to your level of consciousness where you are. So if you are awakened, ensure that you are doing the right karmas. Ensure that you are contributing to the humanity. So your next birth should be better than this. तो अभी कुछ डिजायर्स पूरे नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, अगले लाइफ में बहुत मौका मिलेगा। कर्म पे ध्यान दो, भगवान से डरने की जरूरत नहीं, अपने कर्मों से डरो। God, you don't have to believe in a fearful God, you have to believe in a loving God. भगवान आपको बहुत मौका देते हैं, पर अपने कर्मों से डरो, क्योंकि कर्म से अगर आपने गलत कर दिया भगवान भी नहीं बचाएंगे। बोलते हैं, आपके कर्म जैसे हैं, भगवान का रूल है ये, कॉज एंड इफेक्ट इज ए यूनिवर्सल लॉ, यू कांट एस्केप इट। तो अपने कर्मों को सही रखो और बाकी रिजल्ट्स भगवान पे छोड़ दो, और अपनी हीलिंग करो, एंसेस्टर्स की हीलिंग करो, लोगों को दुआएं दो, लव पीस एंड जॉय की एनर्जी भेजो सबको। यू विल लिव ए ग्रेट लाइफ, इस जन्म में भी, अगले जन्म में। तो कितने लोग, बहुत से हीलर्स यहाँ पे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये मेरा आखिरी जन्म है, मेरे को मोक्ष चाहिए। गुड, तो यू शुड बी मूविंग अहेड। रूट चक्रा पे स्टार्टिंग है आपका। अब क्या आप रूट चक्रा से ऊपर उठे? अब 7 चक्रास कौन से हैं जो हीलर्स हैं वो जानते होंगे, राइट? जो मैंने टर्म बताया, ओम भू, ओम भुआ, ओम धुआ, ये सब क्या हैं? ये सब लेवल्स हैं। सेक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, करेक्ट। देन आता है आपका मणिपुर चक्रा और सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा और अनाहट चक्रा। ये सब हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। और जैसे जैसे आप कॉन्शियसनेस में ऊपर जाएंगे तो देवलोक खुल जाता है, वो स्वर्ग लोक है, ओम स्वा, ये स्वर्ग लोक। बट वहां के लिए आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। यू हैव एब्सोल्युटली परफेक्ट बॉडी, वेरी हेल्दी बॉडी, यू विल एंजॉय टिल ग्रेट लाइफ, टिल योर लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। गेट दैट? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल एंजॉय फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, यू विल हैव ऑल द प्लेजर्स इन लाइफ। और वो स्वर्ग लोक है, वो अभी देवलोक में नहीं, देवलोक और स्वर्गलोक में पहुंचे, वैकुंठ का लेवल बहुत ऊपर है। जैसे स्वर्गलोक का सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, वापस आ जाओगे आप भूलोक में नॉर्मल लाइफ जीने, तो उस समय आपने क्या कर्म किए, फिर उससे अगला जन्म मिलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर कर्म। सिर्फ अपने कर्मों से डरो, और किसी से डरने की जरूरत नहीं। मेकिंग सेंस? सो दैट इज अ वेरी लॉन्ग आंसर टू ए वेरी टफ क्वेश्चन अगेन। तो सिल्विया जी ने पूछा था, लेट्स एक्नॉलेज सिल्विया जी फॉर दैट। ऑलराइट, गुड। और कोई मन में दुविधा हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देन आई विल कम टू द प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस बड़े सिंपल से हैं वैसे। हम पहले थोड़े से प्रैक्टिसेस की बात कर लूँ, वरना लोग कहेंगे ज्ञान ही देते रह गए, प्रैक्टिसेस तो बताया ही नहीं। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग द हीलिंग एफर्मेशंस जो मैंने दिए हुए हैं? आई एम ए लवफुल सोल, कर रहे हैं वो पूरा सेट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी शुड डू दैट। यस, यस, वेरी गुड बलजिंदर जी, गुड, यू रेज योर हैंड। तो हीलिंग प्रेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टू पॉजिटिविटी, और आपको हीलिंग एनर्जी बड़ी आसानी से मिलेगी जो मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट करके जो मैं हीलिंग एनर्जी भेजता हूँ, एंड बाय द वे इट इज डन राइट इन द मॉर्निंग अराउंड 3:30। so for all the healers who are in this group are getting a lot of healings from me. So I'll shortly come and ask you what are the differences that you're experiencing in your life. If you're not experiencing anything, don't worry, miracles and magic are bound to happen. वो आएंगे, टाइम लगेगा। जैसे जैसे आपके कर्मास हील होंगे, वो मैजिक एंड मिरेकल्स आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हीलिंग प्रेयर्स कर रहे हैं सब लोग? यस। उसके बाद एक एफर्मेशन मैंने लिखवाई थी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके लिए मैंने क्या बताया है, आपको अपने एंसेस्टर्स की पूरी लिस्ट बनानी है। उनको याद करते हुए आपको कुछ प्रैक्टिसेस आज करने हैं और एक कल सुबह करने हैं। कौन से प्रैक्टिसेस हैं, किसने पढ़ा है, ये कौन बताएगा? मैंने पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। क्या करना है आज? हाँ, यस रूपा। सत्य, आप रेज किया है, बताओ बताओ। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। हाँ, कौन बोल रहे हैं? रूपा जी बोलिए। यू रेज योर हैंड, यू आर ऑन म्यूट। वो एक तो साउथ फेसिंग वो घी का दिया जलाना था, हाँ, और तो और कल साउथ फेसिंग करके जल चढ़ाना है। वेरी गुड,
Very good, बहुत बढ़िया. Let's acknowledge Rupa ji for that. These are two very important practices that we are going to do. तो जिसने नहीं किया अभी तक, डरने की जरूरत नहीं है, आज करना है. ओके, संध्या के बाद एक दिया जलाना था, और अगर नहीं किया आज करना है. 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ, पहले मैं ये बता दूं 0 पॉइंट. राइट, तो दिया जलाना है, तेल का जला सकते हो, घी का जला सकते हो. उसके बाद पूरे घर में उसको चला के, ये भी ऑप्शनल है वैसे, यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू द सदर्न एंड ऑफ योर हाउस, साउथ डायरेक्शन में जाके ये दिया जला के रखना है. सारे एंसेस्टर्स को याद करते हुए उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए प्रेयर करना है डिवाइन से, और उनसे आशीर्वाद मांगना है ताकि उनकी ब्लेसिंग से आपकी लाइफ आगे बढ़े. ये करना है, ठीक है. पहला हो गया ये दिया जलाना है. दूसरा है कल सुबह, अब कभी भी कर सकते हो आप ये, अगेन साउथ डायरेक्शन में फेस करते हुए आपको जल देना है. ओके, तो साउथ कहाँ होता है, जहाँ ईस्ट अगर आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है तो साउथ सामने होगा. तो अगर राइजिंग सन को देख के कर रहे हैं आप, तो वो लेफ्ट साइड में राइजिंग सन होना चाहिए. आप फिर साउथ की तरफ देख रहे होंगे, तो साउथ की तरफ आपको जल देना है. जल कैसे देना है, जैसे भी दे सकते हो, उसमें कोई स्टाइल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. बट यू थिंक ऑफ योर एंसेस्टर्स, यू प्रे फॉर देयर स्पिरिचुअल जर्नी, कि वो आगे बढ़ें, उनके ब्लेसिंग से आपकी लाइफ आगे बढ़े और सब लोग खुश रहें. सबके लिए लव, पीस एंड जॉय की एनर्जी का ब्लेसिंग्स देते हुए आप ये जल का विसर्जन करेंगे. तो अपने हाथों से कर सकते हैं, किसी लोटे से कर सकते हैं, ग्लास से कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं. कल ये करना बहुत जरूरी है. एवरीबडी होल्ड. तो ये कल करना बहुत जरूरी है. राइट, तो दीज आर द 2 प्रैक्टिसेस दैट यू हैव टू डू. आज रात को दिया जला लीजिए और कल सुबह जल देना है. यस, नाउ आई कैन टेक क्वेश्चंस. किसका सवाल है? यस रूपा, गो अहेड. Talking about morning, you mentioned morning, water, Water, jal in the morning. But if you forget in the morning, don't get panicky. Whenever you remember it, do it. But best thing to do that is either during the bath or after the bath. and the water has to fall on the ground, because I am not Yes. familiar with. Acha, okay. Water has to fall on the ground. Okay. So normally I go to the balcony where there are a lot of plants. तो बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, तो मैं गमलों के पीछे खड़े होकर डाल दूं ताकि गमले में पानी गिर जाए, गमले की दूसरी तरफ गिर जाए, तो एटलीस्ट इट डजंट फॉल ऑन योर फीट और योर क्लोथ्स. यू कैन डू दैट. राइट, सो दैट इज द वे टू गिव द जल. नहाते समय भी कर सकते हो आप. मेनी टाइम्स आई डू दैट. नहाते समय साउथ डायरेक्शन मालूम है कहाँ है, उस तरफ फेस करके एंसेस्टर्स को याद करते हुए आप जल दे सकते हो. तो अपने हाथों से दे सकते हो, लाइक दैट. ओके, आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा, नदी में वो नहाते जल दे के सूर्य को जल देते हैं ऐसे करके, तो वैसे भी दे सकते हो आप. पर सूर्य को नहीं देना है, ये साउथ डायरेक्शन में देना है, एंसेस्टर्स को याद करते हुए. सूर्य को जल देना तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस विच आई डू डेली, बट दिस टाइम इट इज टू बी डन फॉर योर एंसेस्टर्स फेसिंग साउथ. यस रूपा, गो अहेड. You had a question? I had this question. Yeah, since let me see. Yeah, I'm not on mute. So since I'm here with my daughter here, and my husband is, can my husband do in my house? Anybody can do it. Anybody and everybody should do it, but at least one in the family should do it. कोई भी एक Okay, जना तो मैं family अपने में कर ले. Yeah, I can do the jal here, but not the ghee diya, so he can do it. He's been doing that throughout, Yeah, actually. good. Anybody can do it. Yeah. In Okay. fact, both of you can do it. Everybody, Okay. anybody can do it. Okay. बच्चों को सिखा दो, वो करेंगे, बड़े कर लें, जो मर्जी कर ले. पर फैमिली में कोई भी एक जना कर ले, it is taken as done. But if everybody can do it, it's very good. Yes? Okay, very good. So let's acknowledge Rupa ji and Sylvia ji for that. Anybody else who has any question? ये 2 practices हैं जो आपको अभी करने हैं आज. अगर नहीं किया तो दिया आज जलाना है और कल सुबह जल देना है. ये दोनों जरूरी है. ओके, सर एक क्वेश्चन है, Yes. अगर मैं साउथ फेस करती हूँ तो सूरज मेरी बैक पे आ जाता है मेरी बिल्डिंग के हिसाब से. बैक में लेफ्ट में आना चाहिए ना. डायरेक्शन देखो ना, ईस्ट कहाँ है, साउथ का है. बैक में तो नॉर्थ आएगा. साउथ फेस कर रहे हो तो बैक में नॉर्थ होगा ना. नहीं, चलो I'll see, because south okay, is, I'll make it easy for you. I'll make it easy Okay. for you. Okay. Wherever you think it is south, you do that. Okay. ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, कल करना जरूरी है. तो जल लो और एंसेस्टर्स को याद करते हुए जल का तर्पण कर दो. ओके, ठीक है सो डोंट गेट कंफ्यूज कि नॉर्थ या ईस्ट है, नॉर्थ है, मैं करूँ या नहीं करूँ. कर लो, साउथ के आसपास जाके कर लो. ठीक है. Okay, yeah. Okay. Sir, Let's I have a acknowledge. question. Yes, Manish, go ahead.
Okay, what I thought like कि घर के बाहर दीपक जगाना है south facing. So I had been doing घर के like बाहर that. मतलब बालकनी में ही, हाँ, घर के अंदर नहीं। हाँ, main gate पे. मतलब ironically that's the south side. हाँ, तो ठीक है, whatever is the south side, outside your house, Yeah. because At the energy end. has to go into the universe. Energy has to go into the universe. ठीक है, Okay, sir. that is how it is. Yes, Rupa, go ahead. Crap. I've been doing inside. Never mind, do it. Energy is everywhere. Don't worry क्योंकि about it. मैंने कहा ना, इसमें कुछ गलत नहीं कर सकते आप. You will not do anything wrong. Okay. मैं यहाँ पे healing कर रहा हूँ. You don't have to worry. मैं सबके लिए कर रहा हूँ. But if you do it, it is better. So if you do it the right way, it is still better. It's much better. Okay. Correct? So I'll do it that tonight. बालकनी And में रखना है, घर के अंदर नहीं रखना है. घर के चारों तरफ आप दिखा सकते हो दिए को. उसके बाद बाहर साउथ डायरेक्शन में घर के बालकनी है तो बालकनी में रखो. नहीं है तो बाहर जाके साउथ डायरेक्शन में बाहर घर के बाहर जाके. okay. Yeah. Anybody else who wants to ask anything? अगर वो लैम्प दिया बीच में बुझ जाए, उसको तो दोबारा कोई जला देना है? हाँ, अगर दिख गया बुझा हुआ है तो जला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. Sir का stuck हो गया. हाँ, कुछ लोग उसमें मैं पहले करता था, मैं पूरी रात जलाने की कोशिश करता था, नॉट रिक्वायर्ड. बट उसमें मैं ये तेल खत्म होने वाला था तो मैं जाके दोबारा से तेल डाल देता था उसमें, तो पूरी रात जलता था. आई वुड गेट सम कंसोलेशन, चलो और हीलिंग हो जाए उनकी. ऐसा नहीं होता है, बट यू just have to light it and the energy will reach there, because it is your prayers which is important. See, all these rituals are mechanical things, you will say, लेकिन उसके पीछे श्रद्धा सही है तो सही एनर्जी जाएगी. तो पूरी श्रद्धा के साथ करिए, डोंट वरी अबाउट इट. बुझ गया दिख गया आपको तो जला दीजिए. Yes. Anybody else who has any question? Sir, I have a question again. Yes, go ahead. Okay, so जैसे आपने बताया कि your parents, I mean maternal and paternal, or है ना, both side I have to make a Yeah. list, Yeah. right? तो मतलब मेरे जितने याद हैं. Hold on. Sir का Wi-Fi थोड़ा सा. Hello. so Am I audible? yes, Yeah. sir. Yeah. So I was asked, I had a question in You my will have to mind, repeat sir. that, huh? My network was stuck, so you will have to repeat that. Yeah. So I was asking, sir, कि while I would be making a list of the ancestors, so मेरे मम्मी पापा दोनों की साइड से होंगे, and my in-laws, I mean the forefathers to my husband also should be counted. I mean, If he is कैसे? doing, then he will count it. अच्छा, If okay. he is doing, he will count it. Okay. If So you are doing, he is you not count doing yours. anything. हाँ, so He don't is do that. not. You do that from. क्योंकि see, when I am doing the healing, I am doing it from your child, Yes, right? sir. So you are covered and your husband is covered. Okay. And then second generation में कौन cover होगा? आपके parents और उनके parents covered होंगे. I don't need to know their name, but if you know the names, आप उनके नाम लिख लीजिए. बेटे के नाम से शुरू करिए. Your child or your daughter, then Okay. your name, and फिर आपके पेरेंट्स के नेम, फिर उनके पेरेंट्स के नेम. ऐसे जितने याद हो उतने नाम लिख लीजिए. जिनका चेहरा याद है चेहरा याद कर लीजिए, और फिर उनका नाम लेके उनका चेहरा याद करते हुए आपको ये प्रेयर करनी है और ये पूरी एक्टिविटी करनी. जल देना और दिया देना, दिया जलाना. राइट? ओके. Okay. All right, very good. So that is the way it is to be done. Everybody, write down the names of all the ancestors that you can remember or you know, and then pray for them and ask their blessings. Simple. Simple है समझने में. नाम याद नहीं आ रहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. It is the energy is so powerful, it will cover everybody. You just need to. I have taken only the your child's name, correct? बाकी सारे automatically covered हैं, so you don't have to worry. Thank you, sir. Yes. All Sir, right. why Let's is it? acknowledge Mani ji. Yes, Sir, Kavan, I've go got ahead. so many questions. Hold on, I'll hold on, hold probably. on. Yeah. Yeah. I'll come back to you. Let Kavan has Thank you. raised his hand. So Kavan, what do you want to ask? You're on mute, Kavan. Kavan, you're on mute. सर हाँ यस सर, वो दीप रखते समय हम ब्लेसिंग्स मांगना है सर, जिसका लिस्ट हमने बनाया है.
हाँ, तो लिस्ट बना मतलब लिया, हम उनको याद कर लिया, दिया जलाते समय ब्लेसिंग्स उनके लिए भी मांगना है, उनसे भी मांगना है. So you are actually asking for forgiveness and they also have to ask for forgiveness from their ancestors, right? उनसे कुछ गलती हुई है तो वो अपने ancestors से forgiveness मांगेंगे और divine से forgiveness मांगेंगे. आपसे गलती हुई है तो आप अपने ancestors से forgiveness मांगेंगे, divine से forgiveness मांगेंगे. So that is how it is. So you forgive, ask for forgiveness and forgive them because you were possibly ahead of them also. once we lit the lamp, we should be asking During the for whole forgiveness process, you from and can blessings from remember them. them and ask for forgiveness. Okay, then we have to go out and keep it. Okay, Huh. sir. And this has to be done only today night and tomorrow morning. That Jal Tomorrow is Charana. the last day. It should have been done throughout, but if you have not done, that is fine. Today you do it, and tomorrow you give the jal. That is good enough. And you can. Even while, sir, sorry. Even while offering the jal, we have to be seeking the blessing and the forgiveness. Yes. Directly. Right. These are two practices that you will do. And in the meanwhile, whenever you are doing this, you will ask the divine for forgiveness and blessings for yourself as well as your ancestors. That is what is the With the whole. divine, with the divine, we need to seek the blessing. Obviously. Fine. So not with these whoever has been Pardon? passed away, not with them. So we need to be seeking this with the divine, not with the people who have passed away, the ancestors who have passed away. See, अगर आपसे कोई गलती हुई है, if you have made a mistake, you will ask forgiveness from your ancestors, and with the divine blessings, you will be forgiven. Okay. If they have made a mistake, whom will they ask? They will ask their ancestors. But who is going to forgive them? The divine energies are going to forgive them. Okay? So you are asking the divine to forgive yourself and your ancestors for any wrongdoing in the lineage. Okay. Fine. Because eighth generation above, maybe you were the one who were there. Okay. Fine, Okay. Sir. So don't get into the calculation. Just simply ask for forgiveness for everybody in your lineage. That's it. Finished. Not only for this lifetime, for all your lifetimes. Okay. Sure. Get that? But Thank of course, you you. won't Thank know the names. You won't even know your name in the last lifetime. So you can forget that. Okay. Okay. Thank you. Yes. All right. Let's acknowledge Kavan. Good. Yes, Manish, you have a question? You have something? Yeah, I do have one question. Yeah. If all the work is done for the ancestors this year, do we need to get them healed again and next year also? Yes, I had answered this before. Possibly you came in late. Yeah. Manish, slight disturbance, so I'm putting you on mute. What you're asking is, अगर इस साल कर लिया तो क्या अगले साल भी कराने की जरूरत होगी? तो उसका जवाब मैंने आपको क्या दिया था? कौन बताएंगे? गुंजन, do you remember the answer? Yeah, go ahead. जब खाना रोज खा सकते हैं, ब्रश रोज कर सकते हैं, क्लीनिंग रोज कर सकते हैं, तो फिर चित्त की क्लीनिंग भी हर साल कर सकते हैं. और चित्त को क्लीन pacific करने का ocean मतलब क्या करना हुआ? चाहिए. एक्चुअली करना Pacific Ocean चाहिए. वाला एग्जांपल अच्छा था. Pacific Yeah. Ocean वाला एग्जांपल अच्छा था. Pacific Yeah, Ocean is that the was right also answer. very good. Pacific Ocean is the Excellent. right answer. क्योंकि Yeah. हर साल Pacific क्यों Ocean. करना पड़ेगा? चित्त को साफ करना is like you are cleaning all the water in the Pacific Ocean. Yeah. पॉसिबल नहीं है एक बारी में. एक महीने की हीलिंग में पॉसिबल नहीं है कि आपका पूरा चित्त साफ हो जाए. जेनेटिक कर्मास आपके इतने हैं, कितने जन्म में कितने एंसेस्टर्स के कितने कर्म लेके आप बैठे हुए हो, राइट? इसलिए जितना जब मौका मिले इस टाइम पे ये हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यू शुड डू दैट every year. If you are a healer, learn the healing techniques and you do it. But if you're not a healer, then you should come to a healer and get this healing done. इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, if you don't want to come to a healer and do this healing every year, learn the healing techniques, become a healer and do that for the rest of your life. Being a healer is a huge commitment, by the way. Most of my healers are aware of this. कितने लोग हैं healers यहाँ पे जो जानते हैं कि healing करना कितना मुश्किल है? Yes, it's a huge commitment. But if you are a healer, you can do that for yourself as well as others. That's how I started it. I wanted to learn this. मुझे हीलिंग करनी थी, एंसेस्टर हीलिंग करनी थी. मैं ढूंढता रहा. जब कोई नहीं मिला, मैंने कहा मैं ही शुरू करता हूँ. So with the divine blessings, I started it, and now I'm doing that for everybody. So that is how it is. अंदर अगर पैशन होगा आपके, बर्निंग
desire होगी तो divine will help you to find out the ways. Yes. So Manish, did I answer your question? It is important. It is very important क्योंकि एक बारी में होगा नहीं clear. No. पैसिफिक ओशन या पैसिफिक ओशन ही सारे पृथ्वी के जितने महासागर हैं उन सबके पानी को अगर आपको साफ करना हो तो ये आसान नहीं. ये डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ये तो उससे कई ज्यादा नामुमकिन है. राइट, दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टास्क. कई जन्म लग जाएंगे. कितने लोगों ने भगीरथ की कहानी सुनी है? उसको भगीरथ को एफर्ट्स बोलते हैं ना, भगीरथी प्रयत्न, मतलब दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो उसकी भगीरथ की कहानी इज वेरी वेरी सिमिलर टू एंसेस्ट्रल हीलिंग. उसकी कहानी ये थी, आई विल पुट इट इन शॉर्ट, एग्जैक्ट डिटेल्स मैं भी भूल गया हूँ. भगीरथ की बहुत बड़ी जो जनरेशंस थी वो किसी एक ऋषि के श्राप से पूरा का पूरा एक मतलब द होल, यू कैन से द होल lineage was wiped out. They were burned to ashes. Now there was no generation there. कुछ नहीं बचा. जो एक बचा बाद में भगीरथ आया and total chaos in their family. क्योंकि फैमिली कर्स था. उस ऋषि का कर्स इतना बड़ा था कि nobody could survive in that family. So he said, I will have to do the moksha for my ancestors. And he started his whole penance. बहुत पूजा करी, ये किया, वो किया, and then that is the whole story about. So he is the one who actually called आकाश गंगा to the earth. यानी कि आकाश गंगा को धरती पे लाने का श्रेय भगीरथ को जाता है, इसीलिए गंगा का एक नाम भगीरथी है. तो वहीं से शुरू हुआ कि जब तक गंगा में हम विसर्जन नहीं करेंगे तब तक लोगों को मोक्ष, आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है. तब वो विसर्जन सही मानते हैं उसे. That is how Ganges became so pure. So Akash Ganga came down and then there's a whole, it's a wonderful story. अब Google सर्च करके पढ़िएगा. तो उसमें फिर वो पूरे फिर खानदान के लिए उनको मोक्ष की, ये वो गैंजेस को वहां तक लेके जाता है, या उनका एशेस का ढेर था, तब उन पितरों को मुक्ति मिलती है. देन दे गो फॉर देयर रीबर्थ. तब तक उनको रीबर्थ ही नहीं था, इतना गहरा श्राप मिला हुआ था. तो फैमिली कर्स वगैरह जो होते हैं उन सब के मुक्ति के लिए ये एंसेस्ट्रल हीलिंग, जिसको हम बोलते हैं पितृपक्ष की पूजा. राइट. So good Manish, good question and I hope I have answered it. और है सवाल? एक और सवाल? या go ahead. आप म्यूट पे हो. आप म्यूट में हो. तो शशि जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो एफर्मेशन हम डेली बोल रहे हैं, ठीक है, क्या वो हमें कंटिन्यू करनी है या टिल टुमारो? अभी ये कल तक चलेगा, कल शाम तक चलेगा. अच्छा. उसके बाद जो नवरात्रों की होगी वो अलग होगी, और उसके लिए मैं अलग इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, और वो हम दशहरा तक करेंगे. एंसेस्ट्रल हीलिंग वाला जो है वो 14 को कल तक खत्म हो जाएगा. आफ्टर दशहरा वी हैव टू स्टॉप दिस, राइट? उसके बाद अगला इन्फॉर्मेशन आएगा नवरात्रों की पूजा के लिए, अलग इन्फॉर्मेशन होगा. आई विल पोस्ट दैट इन द ग्रुप. राइट, so keep following that information in the group. Thank you. Yeah. All right, let's acknowledge Manish for that. And it is already 9 o'clock, but I'm okay with it if we want to extend for some more time. Any question from anyone? Let me first take that. Let me check with people who have not asked any question till now. So, Shobna ji, Jyoti ji, and Shami Mehra ji, namaskar. Yes. Anybody who wants to ask any question, please go ahead. कोई भी सवाल हो आपके, कोई डाउट्स हो. बलजिंदर जी, if you have any question, please ask. Right. तो अगर कोई सवाल नहीं है तो प्रोसेस आपको सबको पता लग गया क्या करना है. साथ में मैंने कुछ और छोटे छोटे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे. सुबह उठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक मंत्र है जो आप बोल सकते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर हीलिंग, स्पेशली फॉर अवर. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाईएस्ट जो लेवल है कॉन्शियसनेस का, विच इज वैकुंठ जो बोलते हैं, तो महाविष्णु का कोई भी मंत्र अगर आप करेंगे वो बहुत पावरफुल माना जाएगा इस टाइम पे. राइट. तो ये आप कर सकते हैं कल सुबह, आज भी कर सकते हो, जब मर्जी चैंट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करते समय अगर ये मंत्र का उच्चारण करेंगे तो बहुत पावरफुल होगा. कितने लोगों ने होपोनोपोनो प्रेयर किया? देखा, सुना, मैंने पोस्ट किया था. आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई फॉरगिव यू, आई थैंक यू. हाँ, वेरी पावरफुल. ये भी आपके चित्त को साफ कर रहा है. तो मैंने बहुत सारे इसमें पोस्ट डाले थे. ओम का मेडिटेशन कौन कौन कर रहा है? ओम के मैंने 3 वीडियोस डाले थे, 3 यूट्यूब वीडियोस डाले थे. कितने लोगों ने सुना है पर मेडिटेशन नहीं किया. मेडिटेशन नहीं किया, कोई बात नहीं, आप उसको लगा के रखिए, 24 घंटे चलने दीजिए उसे, घर बहुत प्योर हो जाएगा. मेरी बेटी भी है सर इसमें, तो उसको रोज इंस्ट्रक्शंस मेरी जाती थी. अब लेट्स
Ask her personally if she has Yes. done it or not. तो कितने लोगों ने ये नहीं किया है, और अगर आपके कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं क्लास नहीं ले रहा किसी की, बट मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है क्या ये ओम रोज सुनना है, ओम की वाइब्रेशन का सिग्निफिकेंस किसको नहीं मालूम है, बताइए पहले। ओम इज द वाइब्रेशन ऑफ द गॉड, ये गॉड की वाइब्रेशन है, ये कोई रिलीजन नहीं है। Yeah. हर रिलीजन में जो भी आपका मंत्र है वो उसमें आ उ और अम आता है, उसी से ओम बनता है। आप किसी भी हमारे रिलीजन में देख लीजिए, एक ओंकार उसमें है, आमीन उसमें भी है, आमन उसमें भी है, राइट। हमारे हिंदू संस्कार में तो ओम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, राइट। तो दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ द गॉड, दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो भी आवाज आ रही है उसका फाउंडेशन या सोर्स ओम है। रूपा, जस्ट कमिंग टू यू वन सेकेंड। इसीलिए ओम को इतना महत्व दिया है। जो भी नेचुरल वाइब्रेशन है, चाहे वो हाथी के ट्रम्पेट साउंड हो, चाहे वो डॉग की बार्किंग हो, कैट का मियाऊ हो, पीकॉक का पीयू हो, सबका ओरिजिनल वाइब्रेशन साउंड इज ओम। पर उस लाइफ फॉर्म में उतनी मेच्योरिटी नहीं है, या उतनी क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस में इम्प्रूवमेंट नहीं है कि ओम बोल सके, इसलिए वो आवाज निकालते हैं। बच्चा जब रोता है, एक्चुअली ओम की वाइब्रेशन है, बट वो निकलता कैसे है, like that, get that? So you have to understand, we are all vibrating with Om. Om is the basic vibration of the God, of the universe. तो ओम की वाइब्रेशन से हमारे शरीर के सारे विकार दूर हो सकते हैं। मन के सारी चित्त को साफ करने के लिए सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है ओम, और हम चित्त को साफ करने की बात कर रहे हैं। तो पैसिफिक ओशन के पानी को साफ करना है तो ओम की वाइब्रेशन चाहिए आपको। दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ओम। ओके, लिसन टू दैट, इट इज वेरी पावरफुल। शाहरुख खान के डायलॉग याद रखते हो, ओम की वाइब्रेशन भी याद रखो। ओके, यस, लेट्स एक्नॉलेज। यस यस, रूपा जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, वेट। Yeah, no, I was about to share my feelings. Is it true या ये मेरा वहम है या मैं क्या है? जब तूने स्टार्ट किया आऊ माँ से, right? You told just now. Hold on, we can't share that here. We Oh, can't okay. share the healing techniques here. Yeah, just simply say Okay. Om, that is fine. Okay. Because when you did that and when I do the magic box या कहीं पे, is अरे it यार कि नहीं बोल सकते Yeah. रूपा, we can't say that, discuss here. That is Okay. healing. Okay, Don't okay. discuss the healing techniques here. Simply say what you want to share. नहीं, फिर I cannot. Then you I have talk We'll to me discuss later. it tomorrow. We'll Then you discuss talk it to me tomorrow. Yeah. कल सुबह बात करेंगे, ठीक है। हीलिंग यहाँ पे नहीं सिखा रहा ना, सारे हीलर्स नहीं है, they will not But understand. You सर just कल है mentioned that. सैटरडे की, तो सैटरडे की क्लास में कल शायद। बात करेंगे, कल सैटरडे है, कल सुबह की क्लास में बात करेंगे। ओके, Okay. या गुड। So let's acknowledge Rupa. Yeah, all right. So Gunjan ji and Rupa ji and Rajiv and Jyoti ji जो healers program में हैं, they should ask your questions tomorrow, because tomorrow जल देने के बाद हम क्लास में आएंगे, ठीक है। उससे पहले जल देना है आपने, उससे पहले दिया भी जलाना है। कल सुबह भी दिया जला सकते हो आप, कल संध्या तक वेट नहीं करनी, कल सुबह दिया जला सकते हो, ठीक है। या all right, anybody else who has any question? Okay, now let me ask you, anybody who has experienced anything in this period of महालया, अमावस्या की जो हमने पूजा करी है, ये जो हमने श्राद्ध के दिनों की पूजा करी है, किसी को थोड़ा सा भी कोई फर्क नजर आया है, नेगेटिविटी कम हुई है, ऐसा कुछ लगा आपको, तो यू कैन शेयर योर आइडियाज। मैनिफेस्टेशन अभी नहीं होगी, लेट मी क्लैरिफाई दैट। मैनिफेस्टेशन आपकी नवरात्रों की पूजा में होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई मैजिक क्रिएट हो, वो अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन नेगेटिविटी हट गई है, चित्त साफ हो गया है, आपके डरावने सपने आने बंद हो गए हैं, ऐसा कुछ अगर एक्सपीरियंस है आपका तो आप शेयर कर सकते हो। शरीर की तकलीफें दूर हो गई हैं, मन के विकार दूर हो गए हैं। दिस विल हैपन, नेगेटिविटी विल कम डाउन एंड पॉजिटिविटी विल इंक्रीज ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट 10 days. That is how the manifestation goes. Okay, yes Gunjan ji, go ahead. सर पर्जिंग बहुत हुई है, बट पर्जिंग हुई बहुत छोटे टाइम के लिए, लाइक
पहले जैसे बहुत देर 2-2 3-3 4-4 दिन होती थी, एक ही चीज को पकड़ के बैठे रहते थे। अभी सिर्फ 5-10 मिनट्स रोना आया, आंसू पोंछे एंड काम पे चलो, दैट्स इट। वेरी गुड, लाइक वेरी गुड, वेरी शॉर्ट, वेरी दैट शॉर्ट इज पीरियड। वेरी वेरी पावरफुल बाय द वे। तो ये Yeah. क्लींजिंग का तरीका है, क्लींजिंग हो रही है, एंड ऑफ कोर्स यू आर इन द हीलर्स प्रोग्राम आल्सो, सो Yeah. पर्जिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी और बड़ी जल्दी फास्ट होगी इसमें, है ना? जी। सो इट इज वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया Yeah, I एक्सपीरियंस है। asked because I'm crying after every 1 hour, and even my father is crying there in US, and मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी रो रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ, मे बी उनकी भी पर्जिंग हो रही है सर, because this Obviously, mind. it is a very powerful healing which is happening, and I'm Yeah. happy to know that your daughter is here, you are there, Yeah. your mother is here, all three of you are here, so you can imagine the kind of healing that all of you are getting, right? Yes, So sir. obviously Yes. बहुत strong purging होएगी and बहुत जी, cleansing हो रही है, and it is very very जी. powerful for your whole family, let me tell you that. Okay, Thank you. so let's Thank you so acknowledge much. Gunjan ji. Her daughter is Kasvi Sika here, and her mother is Shami Mehra here. Let's acknowledge all of them. Very good, good commitment. Thank you so much. Okay, very good. Anybody else who wants to share anything? Any experience of negativity becoming lesser in your life? ये अगर नहीं हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं, होगा, हाँ, टाइम लगेगा। इट इज लाइक डिलीटिंग ए बिग फाइल। बड़ी फाइल को डिलीट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन डिलीट सब होंगे। नहीं, डिलीट लेस तो बटन हो दबाते गई है। रहिए। लेस हो गई है, या या गुड, वेरी गुड। लेस तो सो तो एक चीज है, मम्मी मेरा कहना मानने लग गई है। उल्टा बोलो, आपको मम्मी का कहना मानना है, उल्टा क्यों कर रहे हो? सर यहाँ उल्टा हो रहा है। ओके, तो कुछ ज्यादा ही पर्जिंग हो गई है मेरे ख्याल से, हाँ? हाँ जी। Okay, okay. Said in a lighter vein, but yes, very good. Good job. So your family is getting a lot of healing. I can see that. Very good. Yes. And you yourself are doing a lot of healing. I can see that also. Yes, sir. Yes, sir. Kavan has been part of the healing program before, huh? Kavan, anything you would like to share? क्या चल रहा है लाइफ में? Lot of turmoil in your life, I know, but everything going fine? Anything you would like to share? No, fine, fine, sir. Fine. Okay, okay. Let's acknowledge Kavan for that. Okay, good. बहुत पहले कवन ने हीलिंग प्रोग्राम किया था। आई होप यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस, राइट? As such not happening, sir, but yeah, I करो have to. करो, रुकना नहीं है। वंस अ हीलर ऑलवेज अ हीलर। यू आर कमिटेड फॉर लाइफ टाइम्स नाउ। दैट इज द कमिटमेंट ऑफ अ हीलर। वंस यू आर अ हीलर, यू कैन नॉट हील, यू हैव टू हील। अपनी हीलिंग करो, वरना लाइफ में सिचुएशन टफ आएंगी, एंड देन यू विल कम बैक टू मी, सर बचाओ, हाँ? तो स्टार्ट डूइंग द हीलिंग। यस, यस मनी जी, यू हैड अ क्वेश्चन, आई विल कम बैक टू यू। यस यस सर। सर मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि श्राद्ध को अनऑस्पिशियस क्यों बोलते हैं? बस ये एक क्वेश्चन कि व्हाई डू पीपल inauspicious, like in terms of buying, purchasing any new thing, like why do people think that we should delay purchasing a car or a home or श्राद्ध के दिनों new में, clothes? श्राद्ध हाँ के जी दिनों सर, में, हाँ हाँ, जी सर, तो हाँ जी। श्राद्ध के दिनों में यू आर क्लींजिंग योरसेल्फ, आपकी नेगेटिविटी को आप साफ कर रहे हैं, ठीक है? हम जब कुछ काम करते हैं तो नहा धो के आते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं ना, पूजा करके, या तो नहाते समय तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है, अभी नहीं करना है। साफ हो जाओ पूरे, उसके बाद अच्छे कपड़े पहनो, फिर तैयार होके मार्केट में जाओ और फिर शॉपिंग करो। तो मैनिफेस्टेशन हैपेंस आफ्टर द श्राद्ध। नवरात्रों के दिनों में मैनिफेस्टेशन होती है। दैट इज वाई वी से श्राद्ध के दिनों में कुछ नहीं करना, नवरात्रों में करो ना, एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। दैट इज वाई। अगर कर ले तो क्या वो गलत है? होगा, कुछ नहीं होगा, बट बेसिकली इट इज नॉट द राइट टाइम ऑफ द। अगर आप बोलते हो कि मैं रात को 12 बजे उठ के मॉल जाके शॉपिंग करूं, आइडियली इट इज नॉट डन, राइट? रात को लोग आराम करते हैं, दिन के 12 बजे जाके मॉल में शॉपिंग करते हैं। सो इट्स समथिंग लाइक दैट, नॉट एडवाइजेबल, नॉट रिकमेंडेड, बट अगर आप करना चाहो तो देयर इज नोबडी गोइंग टू स्टॉप यू, गो एंड डू। बट आइडियल सिचुएशन, you should not try anything new during the Shraddh, because this is the time when you are supposed to take the blessings from the ancestors, heal yourself, heal the ancestors, take their blessings. पूजा करने का टाइम है, पूजा करने के टाइम पे पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद सेलिब्रेशन करो, दैट इज व्हाट। बाकी सब कहानियां हैं सोसाइटी की, बट स्पिरिचुअल एंगल इसका ये है, राइट? ऑलराइट, लेट्स एक्नॉलेज मनी जी।
Good. Okay, 9 and 13. We have 13 minutes overtime. Anybody else who has any question? Any experience? Any other experience that you have or you want to share? Okay, so now let me tell you what is the next step. Okay, तो कल जो करना है मैंने आपको बता दिया है. अगर एक आध पॉइंट छूट गए होंगे तो मेरे पोस्ट में देख लेना. आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. ओम की चैंटिंग कंटिन्यू रखिएगा. ओके, एफर्मेशन जो नया चाहिए वो मैं कल पोस्ट कर दूंगा. वंस बाय इवनिंग आई विल पोस्ट इट. वो एफर्मेशन आप अगले 10 दिन तक करेंगे, विच विल हेल्प यू फॉर मैनिफेस्टिंग इन यूर लाइफ नाउ. क्योंकि अब बाकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल गई, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम हट गई. अब आपको अपनी लाइफ में जो डिजायर्स हैं फुलफिल करना है, उसको हम मैनिफेस्ट करेंगे अगले 10 दिन में. ठीक है, तो अब कल शाम से शुरू करेंगे एंड दशहरा तक. और दशहरा के सुबह, अगर सुबह दशहरा सुबह एवरीबडी इज ओके, वी विल हैव अनदर ज़ूम मीट. जस्ट टू नो अगर दशहरा सबके लिए बिजी है तो हम उसके बाद कर सकते हैं. 24 के बाद 25 को भी कर सकते हैं. Get that? So you just let me know. I will post that in the group. 24 को दशहरा है तो पॉसिबली 25 को हम लोग एक बार एक और जूम सेशन कर लेंगे, so that you can share your experiences, what all has happened in this 10 days, right? And finally the culmination will be on the full moon day, which is 28 को हम ये हीलिंग बंद कर देंगे और ये ग्रुप जो है हम फिर वो क्लोज कर देंगे 28 के बाद. ठीक है, so that is the steps going ahead, going forward. All right, last and final call. Anybody having any question? कोई सवाल? Everybody okay? Right. So with this we come to the end of the session. Let me just check if anybody has to ask any question. तो ज्योति जी, शोभना जी, बलजिंदर जी, आपने कुछ नहीं बोला है. अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं, रितु जी, if you are there, anybody who wants to share something, please go ahead. Otherwise we will close the session. किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? No, thank you. Okay, very good. All right, good. So in that case, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation, and I hope you got the answers and you become more clear about what is ancestral healing and the importance of ancestral healing. So follow the practices with a lot of faith and surrender to the divine, and you will create magic and miracles in your life, right? So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great life. Fulfill the practices tomorrow. Until we meet again, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Thank you, sir. Thank you so much. Good night. Good night. Take care. Bye-bye.